general sense, in generic sense, in very loose sense, there is no difference. The literature review or systematic literature review, those papers, what type of things talk about the literature which is available on the domain across the database and journals. People do it because it's very easy in the sense, in case you have resources, database is available with you. And even if you don't have, you can use some library for 1 day or 2, and then you can grab some data and then you can work on your page. So that is something which you can do even if you don't have access to other resources that I mentioned earlier. Second thing is that when you are doing PhD, you are starting PhD. So we are not very well versed with the statistical aspects, and we don't even know that whether we want to do it or not, whether what could be the gap. But we are simply interested in the topic, and we don't know what to do, but we are simply interested in the topic. So literature will give you that direction that where you can move further in this direction. So that's why nowadays SLR papers have become very much popular, because if you have conducted SLR in your PhD process, that means you know about the topic. So that's it, taking a lot of attention. So गाइड की हिंदी है पहला पेपर तो शेयर हुआ उसकी रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी में आपको निकाल के देंगे कभी भी जाओ SLR करते हो. So don't jump to the theoretical model, don't jump to the research question, just find out what needs to get the attention. Based on that, it would be very easy to defend your research question because literature is very good at, some papers is very good at. So you have to. Now, this is true when we want to do, want to write something. But if I just want to know about some topic, right? I may not be interested in writing, but there are many topics about which we wish to understand what's there and what's the conversation going around in there. So that also is a very good thing to start. एक अच्छी पिक्चर का ट्रेलर है, इतना वास्ट लिटरेचर है, we cannot capture more literature, we cannot put the common thread sometimes. So SNR is something that by reading 25-30 pages और अगर और उससे कंटाइज पढ़ना के 10 पेजेस के बेसिस पर, you will get to know what till today in this domain has been done. So sometimes you want to know about some domain, some topic, some areas, and you are still not very clear whether I should put my energy into reading the papers of this domain. Then you can go and check the SLR of different domains. Then you can see where you're finally getting your interest, and then you can explore that particular domain. Sometimes when you want to read out some kind of topics from your list of the topics, SLR is also one way to do that. Right? Now, like any other paper, SLR paper also follows some kind of structure which I have, I'll be sharing with you, right? So same introduction is there, nowadays in LR section is also added, then there is a methodology section, then there is result and finding, and then the future research implication, conclusion. So like every other paper, there is a set structure of the paper, more or less same across all the journals. But depending on how much word limit one journal publishes, so that becomes sometimes a challenge for LR paper that to print a paper into 6,000 words, 7,000 words. Sometimes it's very difficult, but it's not important. Right? So in form of appendix, you can use the data. And sometimes editors are so interested in your paper, in your topic, that they waive off that word limit kind of thing. Initially they want, but in case it goes to 8,000, 10,000, that they are fine with that. That's a कोई hard and fast नहीं होता. It's a suggested number होता है. Not for every papers they are waiving of that word limit, but few paper editors find it very interesting, so they do that. Still, whenever you think of developing any SLR paper, always take a standard limit in your mind, that is around 8,000, 7,000 words, and classify your section as per those word limits. Because ultimately your paper will go for the region or go after region also will add some words, so they will increase the load. It is very difficult to cut down because the flow is there, and you cannot just cut down the line. So automatically it will be rewriting of the paper in case you are asked to reduce the paper words. So it's better you
take the cognizance of the paper, and why I'm saying 8,000 words, because most of the journals are taking this kind of word in it. So better you develop your paper conference, you will find many of them. Every year, luckily for many journals, there is no word. Right, they are very open. 16,000 वर्ड तक पेपर जाता है, मेरे खुद के पेपर 16,000 वर्ड से 15,000 तक जाता है। बट अभी जीओसी की पहले ओपन था, बट अभी वो 8,000 वर्ड का लिमिट हो गया है। लेकिन एल्सेवियर, बायलेट, एएनएम ये सब पूरे से कंजर्वेटिव है एज पर एज कभी-कभी। So they are very conservative regarding this word. So first thing, why SLR is important, few things I have mentioned, but people are generally get attracted to my third point, that easy publication. लोगों को लगता है आज सीखेंगे और कल को चल जाएगा. By easy publication, my meaning is that for every research paper, you need to get some kind of gap, right? For SLR paper, it's very easy to tell the difference because in Google Scholar, if you know that no SLR exists in that domain, it's very easy to tell you. Right. So that's why that's easy to publication because gap is clearly available because scholar will tell the gap or spoken figure will tell the gap. There is no review paper, or even if the review paper is available, how your review is different from other review paper, you can always decide those and then you can get it done. So that justification of doing that topic or doing the paper is easily conducive to the readers. But other than that, there are other this thing also like for listing high number of citations. Now, SLR papers are those papers which get a lot of citations because everybody who, if you are lucky and you are able to publish in great and you start getting you are above that, so people are working in this domain is definitely responsible. So your paper will definitely get many views. Citations will be very high. आप किसी का भी पेपर देखेंगे ज्यादातर किन स्कॉलर से चेक करेंगे एक दो पीपल हैबिटेड सेक्युलर हो गए टॉपिक that will be one of the highly cited paper of that topic. So that's true for me also and that's true for many people also. SLR का ज़्यादा चार्म हो गया. Then rigorous scientific methodology. This is the point which makes literature review separate from SLR. Now, as name is mentioning, systematic literature. And why systematic? Earlier, what was the way we used to do literature review? बताइए आप कभी किया होगा literature review कैसे करते थे? What was the method? Come on. अब ये क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी कर सकता है. कैसे करते थे लिटरेचर रिव्यू? How do you identify the paper जब आप लिटरेचर रिव्यू करते थे पहले के? जब कुछ लोग गलती करते थे कैसे करते? गूगल स्कॉलर में हम कीवर्ड टाइप कर देते हैं जिसकी कीवर्ड से हम काम कर रहे हैं एंड वी गेट सम सजेशंस कुछ 50 पेज आ जाते हैं हमारे सामने और उसमें हमारा जब तक दिल करता रहता है हम उसको क्लिक करते रहते हैं नीचे फिर पेपर इजली डाउनलोड हो जाते हैं वो कर लेते हैं. और कोई तरीका? हम कुछ ज्यादा लेटेस्ट पेपर हो तो उसमें थोड़ा सा देख लेते थे और बट ये थिंग जब हमारी लाइब्रेरी में जो अवेलेबल था तो इतने पुराने टाइम के बात करें जब प्रिंट जर्नल का जमाना होता था सिर्फ प्रिंट करना था जमाना था या इंडिया में हम सबकी लाइब्रेरी से रिच नहीं होते थे कि हम उन रिसोर्सेज को रिटायर कर रहे लोग एमडीआई की लाइब्रेरी में जाकर वहाँ पे बैठ कर फिर फोटो कॉपी कराते जाते थे बहुत सारे फिश होते में बाहर सारे बैग लेके आते थे उसको धीरे धीरे पढ़ते थे जो अवेलेबल है ठीक है किसी ने इशू करा रखे तो गया वो नहीं मिलेगा समटाइम मतलब इट वाज दैट सो दैट इज जो हमारे हाथ आया कि जो हमें समझ आया दोनों में एक सिचुएशन लेकर हमने उसका रिपोर्ट हम काउंट करते थे अच्छा 50 का हो गया अच्छा अगर 2024 से 24 से 2 पेपर हो गए 23 के 5 हो गए 22 के 3 आ गए 19 के हो गए 2002 पे तो किस तरीके से वी यूज टू ट्रैक की लेटेस्ट पेपर भी डाल दिए 3 से 8 करोड़ लिए 23 का भी हो गया 22 का भी हो गया अच्छा पीडीएफ सबमिट करते करते 25 चढ़ेगा तो चलो 25 का भी फटाफट डाल दो
एक पेज का प्रिंटर वापस से निकाल दो, तो we used to do that. Now this is a no traditional or no statistical method to do that, it is a traditional method to do that. क्यों ऐसा है, क्यों मैंने इसको नॉन साइंटिफिक कहा आपके हिसाब से? स्ट्रक्चर किस तरीके से वही थिंकिंग रेप्लिकेशन किस तरीके का तो सेम रिसर्च तो मैम अगर एक बात बताओ, आप डेटा भरवाते हो, मैंने क्वेश्चन करा थे क्वांटिटेटिव, मैंने कह दिया बीटा इतना, अब मेरे वाले स्टूडेंट से डेटा भरवा लोगे सेम मॉडल में, अभी श्योर कि सेम आ जाएगी रिसर्च? ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हो गए हैं। सबसे बड़ी बात भी वो मुझे अभी भी चिल्लाने रहते सर, हमको पेपर तक नहीं पहुंच पाते। सबसे बड़ी बात इसके अंदर है, देयर इज नो क्लियर कट रीजन व्हाई वी हैव इंक्लूडेड एनी पेपर इन आवर स्टडी एंड व्हाई वी हैव नॉट इंक्लूडेड एनी पेपर। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन कि अगर मैंने कहा कि मैं 25 पेपर के ऊपर कर रहा हूं तो बाकी 50 तो क्यों नहीं कर रही? क्यों छोड़ा है? There is no methodology that why you have excluded some papers, and there is no methodology shown anywhere that why some paper is not included in each answer. So this particular feature makes a literature review a structured review. Then how to do that? So how to do that is every step we bring transparency into the picture. Like हम कैसे डेटा डालते हैं, आपने बोला गूगल स्कॉलर तो कुछ कीवर्ड्स डालते हैं। Then how do you know जो कीवर्ड्स आपने डाल रहे हैं क्या वो एग्जॉस्टिव है, या बहुत सारे जो आपको मन के जो आपको पता है, या वो कुछ बड़े प्यारे बच्चे होते हैं हमारे घर में भी कुछ होते हैं बच्चे, आप में से कुछ होंगे अपने घर में फेवरेट, आपके 510 नाम होंगे, सबके फेवरेट होंगे, आपके मौसा जी आते होंगे, आपको कुछ नाम रख देते होंगे, आपकी माँ की कुछ और, बुआ कुछ और, कुछ ऐसे ही होते हैं जिनमें एक ही नाम होता है, बहुत ज्यादा प्यारे कम होते हैं। इसी तरीके से टॉपिक हमारे दूसरे होते हैं, कुछ बड़े फेमस टॉपिक, बड़े सबकी अटेंशन ग्रैब करने वाला है, सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट है ना, बड़ा फेमस बच्चा हो गया है। तो ऐसे बड़े सारे टॉपिक्स होते हैं कि बड़े सारे मिलती नहीं हुई, सस्टेनेबल कंजम्पशन को हम बड़े सारे नामों से जानते हैं। इन दैट केस हमें उसके सारे सिनोनिम्स पता होना चाहिए, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके ज्यादा नाम नहीं होते, एक ही नाम, जैसे एथनोसेंट्रिज्म एक ही नाम है उसका, ठीक है, तो उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, और फिर उस लिस्ट को हम बाउंस कराते हैं, और फिर जाकर हम पेपर निकालते हैं, उसका एक मेथड होता है, फिर हम हर स्टेप पे बताते रहते हैं कि हमने इतने पेपर लिए, एक्स पेपर लिए, क्यों हटाए, वाई पेपर लिए, क्यों हटाए, एंड देन फाइनली हाउ वी हैव रीच्ड टू दैट पर्टिकुलर नंबर व्हिच वी आर क्लेमिंग टू रीच, कि हमने इतने पेपर का रिव्यू किए। तो दैट मेक्स अ रिपोर्ट मैम ने बोला रेप्लिकेबल नहीं है, रेप्लिकेबल का मतलब इस तरीके से अगर मैं ये बताती हूँ कि मैंने ये वाले कीवर्ड डाले इस महीने में, इस दिन में, इस डेटाबेस में डाले, है ना, और ये वाले सारे मेरे फिल्टर्स से कुछ यूज का वर्ड, तो वेरी लाइकली मैं सेम पेपर ही नहीं मानने वाली। अगर मैं ईयर सेलेक्ट करूँ, ठीक है, कई बार ईयर में मंथली हो गया, अगर मैंने जून 23 किया तो मुझे 23 करना होगा, तो दिसंबर 23 करेगा तो उसका 23 होगा, बट देयर वुड नॉट बी वेरी स्टार्क डिफरेंस कि पहले 5000 पेपर ही करना है, 10,000 करेंगे, इट वुड बी हार्डली 50 पेपर ज्यादा आ जाएगा, 60 पेपर आ जाएगा करेंगे, बट नॉट बियॉन्ड, और कम तो किसी केस में नहीं होगा, कम तो किसी भी केस में नहीं होगा, ज्यादा जरूर हो जाएगा। So that makes the literature review paper highly objective, because objectivity का जो concept था ना लिटरेचर रिव्यू पेपर का मिसिंग था। मुझे कैसे पता है कि आपने लिटरेचर का बायस रिव्यू दिया है या न्यूट्रल रिव्यू, क्योंकि मुझे जो आपको समझ आया हो सकता है आपने वो वाले पेपर ले लिए, आपने दूसरी तरफ की डिस्कशन को राइट, ये एक तरीका है टू टेल कि द पेपर वी सिलेक्टेड वाज वेरी मच ऑब्जेक्टिव इन वी आर वेरी मच ऑब्जेक्टिव इन एनालिसिस। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन, बस वो एक ही है, आप इंक्लूजन करके आगे बना लेते हो, आगे इंक्लूजन करके बता लेते हो। मैंने इंग्लिश को किया,
मेरा इंक्लूजन मैंने अदर देन इंग्लिश सब्स्टिट्यूट कर दिया इतने सारे होते हैं आधे इंग्लिश में डाल देते हैं आधे इंग्लिश में डाल देते हैं जैसे मैंने बिजनेस मैनेजमेंट इंक्लूड किया ईयर बिफोर 92 वाज स्टूडेंट ऐसे करके बता दो कोई और क्वेश्चन किसी का इसके अलावा में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आते हैं मैम समझ नहीं रहे एक्सेल पेपर को समझ लो अगर आपकी रिसर्च ये है कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट की क्वालिटी क्राइटेरिया लगे तो आप एक्सेल किसके कर रहे हैं क्या आप एक्सेल इससे कर रहे हैं कि जितने भी पेपर्स में पीजी स्टूडेंट के ऊपर काम किया होगा और जिसकी क्वालिटी क्राइटेरिया होगी सिर्फ उसके ऊपर एक्सेल कर देंगे तो इतना नैरो टॉपिक पे एक्सेल नहीं होता है हाँ हाँ तब ये होगा जैसे मान लीजिए अगर मैं कस्टमर कहती हूँ कि मैंने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से नहीं जो नॉर्मल कंज्यूमर एंडी कंज्यूमर है उसके ऊपर जितने स्टडी की होगी आई यूज दैट तो दैट वुड बी माय यूज और बाद में नीचे एक्सप्लेन करना हो क्योंकि वो इनिशियली कीवर्ड में नहीं डाल सकता वो आप जब एक्सेल ट्रेनिंग करेंगे लेटर फेज पे आप करेंगे कि द पेपर विच नॉट मैच विद आवर ऑब्जेक्टिव वो एक्सक्लूड होगी फर्दर लेवल पे एक्सक्लूड होगा ठीक है Now very common question which I have generally received कि कब करें एक्सेल बड़ी शौक से टॉपिक ढूंढा बड़ी मेहनत से करने बैठे इससे पहले भी हम उसमें ज्यादा कुछ कर पाते गूगल स्कॉलर ने अलर्ट दे दिया दिस पेपर पब्लिश अब क्या करें कोई बात नहीं आपको एक डाइवर्जन निकालना पड़ेगा उसका डाइवर्जन सबसे पहले तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है पहले इसको एड्रेस करते हैं कितनी स्टडीज होती है whenever we are considering to write any exam paper जो बिल्कुल लास्ट स्टेज का फिल्टर होता है उसके एटलीस्ट 50 स्टडीज होगा आई एम नॉट चैलेंजिंग दिस नंबर किससे कम पे नहीं होगा 30 की भी मिलेगी 15 की भी मिलेगी पर काफी नहीं होगी ठीक है तो कुछ लोगों की आती है जो लोग किसी डोमेन में या तो बहुत स्टैब्लिश एरिया है या कोई और रीजन होता होगा बट नॉट फॉर एवरीवेयर नॉट एवरी एडिटर इज ओपन टू सबमिट और रिव्यू बेस्ड ऑन सच लेस नंबर ऑफ स्टडीज आप सोचते देखो एसएलआर का पर्पस को एसएलआर का पर्पस है कि अभी तक डोमेन में जो काम हुआ उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूड करे और कुछ आगे की डायरेक्शन राइट अगर हमारे पास पेपर ही 10 20 15 बताने को तो मैं क्या ही डायरेक्शन बताऊंगी क्या ही बताऊंगी तो इतना कुछ बताने को तो दैट इज अ टॉपिक इट इज वेल डेवलप्ड वो आपके एसएलआर में जाना चाहिए वो अलग बात है आजकल एसएलआर का इतना चाहने के लिए जनरेटिव वैसे 5 पेपर मिले हैं उसके ऊपर एसएलआर आ गए अभी मेटावर्स को 10 का पेपर नहीं है उसके ऊपर एसएलआर आ गए पर आपको भी नोटिस करना कि इतनी अर्ली स्टेज में नए टॉपिक एसएलआर पब्लिश होते वो कभी भी प्रीमियर जर्नल में पब्लिश नहीं हुए वो या तो कॉन्फ्रेंस के पेपर होते हैं या थोड़े से नीचे होते हैं या वो थोड़े से लो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश होते हैं तो बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं होते तो जनरली कितना पेपर आपका होना चाहिए नाउ द सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम तो मैंने बता दी मैक्सिमम क्या है देखो मैक्सिमम मैंने 300 वाला भी देखा है 250 वाला भी देखा है डिपेंड अपॉन आपकी लिमिट कितनी टीम में काम करना है आप सिंगल होगा आपको मैंने 400 सेकंड कैसे बता दिया वो डाउट नहीं करता नहीं आप कैसे कर सकते हैं 300 400 टेबल पे क्या लिखा है इवन मेक द टेबल कैन नॉट कंपाइल तो दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल अगर 3-4 लोग हैं और वो कहते हैं कि मैं 200-250 टेबल का लिखूं दैट्स ओके रेशियो समझ जाते हैं लेकिन इससे ज्यादा का ना ही कम करते हैं क्योंकि वो बहुत सेगमेंटेड हो जाता है वो बहुत शार्प नहीं रहता तो आइडिया ये है कि 50 से लेकर आपका 150-200 तक का नंबर होता है दैट इज ओके फॉर राइटिंग एनी अगर कोई एसएलआर पेपर आपकी नजर में आ गया ठीक है जिस पर आपका मन था लिखने का बट थैंकफुली दैट हैज नॉट बीन पब्लिश इन वेरी रेप्यूटेड जर्नल किसी पीयर रिव्यू में आ गया किसी ऐसे पैसे में आ गया तो आप पूरा लिख सकते हो आप ये कह सकते हो कि फर्दर एक्सप्लोरेशन की जरूरत है और काम करने की जरूरत है और उस पेपर का रेफरेंस जरूर डाल क्योंकि आपके इग्नोर कर देने से वो पेपर डेटाबेस में चला नहीं जाएगा रिव्यूअर जाएगा सबसे पहले उस पेपर को चेक करेगा तो बेटर यही है कि आप उसको एक्नॉलेज करें और आप दिखा दें
कि ये सुपर काम हुआ है, बट उसमें से कुछ उसकी बहुत बुराई नहीं करनी है, क्योंकि वी नीड टू बी लिटिल मैच्योर व्हाइल वी आर राइटिंग। ऐसे नहीं करना किसी ने किया, उन्होंने सब स्टैंडर्ड काम किया, इन्होंने ऐसा काम किया, हम करके दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं। आप इनको लिखिए कि इसके अंदर ये थोड़ा सा लूज पॉइंट्स है, वी नीड टू फिक्स दिस एंड वी नीड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो आप कर सकते हैं उसके अंदर। और तीसरा ये है, और वैसे भी अगर आप उसको रेफर कर रहे हैं तो एडिटर, अगर आपका अच्छी जगह जा रहा है तो एडिटर अपने आप ही देख लेगा कि वो समझ सकता होगा, तो आपको बहुत ज्यादा उसको डिस्कस करना नहीं पड़ेगा। The third is when existing we do have gaps. जैसे मोबाइल बैंकिंग से फॉर एग्जाम्पल कोई लिंक भी अवेलेबल है और 2020 तक का है, वी आर ऑलरेडी रनिंग इन 2024। मोबाइल बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग वैसे बहुत डेवलप हो गई, तो आप इसमें तो कोई एक विजुअल साइड करके यू कैन ऑलवेज कवर कि 5 साल हो गए हैं, बहुत लिटरेचर ऐड हो गए, तो दिस इज अ गुड कैंडिडेट फॉर रिव्यूइंग और बहुत डायमेंशन से नया। तो यहाँ पर मतलब इंट्रोडक्शन में जब आप गैप की बात कर रहे हैं, वो पैराग्राफ देन यू हैव टू टेल अबाउट इट। आपको अपना पेपर इंट्रोडक्शन नहीं सेल करना है, नीचे तो कोई नहीं जाएगा आपका पेपर पढ़ने के लिए, नोबडी सो फ्री, आप भी इतना फ्री नहीं, अपना पेपर ही नहीं पढ़ा जाता। बताओ अपना पेपर दिन से कितनी बार पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ा जाता, इतना पेशेंस ही नहीं है। आपको एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन नहीं अपने पेपर को सेल करना। ये कुछ डिफरेंस है, हाउ एसएलआर इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लिटरेचर, इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। ये टाइप ऑफ एसएलआर है, ये क्लासिफिकेशन मैंने नहीं दिया, ये जस्टिन शॉर्ट के पेपर में क्लासिफिकेशन था। तो वी टोल्ड की लिटरेचर रिव्यू भी अलग अलग तरीके के लिखते हैं, तो मेन बेस के अंदर ही होता है स्ट्रक्चर रिव्यू, फिर बहुत सारे टेबल्स की फॉर्म में आप डेटा दे देते हो, कौन सी स्टोरी है, कौन सी कंटेक्स्ट है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग डेटा। फ्रेमवर्क बेस्ड जैसे हमने बात की थी, ये वाला एडीओ फ्रेमवर्क होता है, एंटिसिपेट डिसीजन आउटकम फ्रेमवर्क हो गया, टीसीपीएम फ्रेमवर्क हो गया। फ्रेमवर्क बेसिकली उन्होंने ऐसे बनाया है कि कोई एक रीजन दे दो उनको जुड़े, तो यू डोंट एक स्टोरी है फ्रेमवर्क। तो हाउ वन थिंग इज कनेक्टेड, जैसे टीसीपीएम फ्रेमवर्क क्या कहते हैं कि कोई भी फिनोमेना कितनी स्टोरीज उसमें यूज हुई, कितने कंटेक्स्ट में वो चेक हुआ, क्या करेक्टरिस्टिक्स थी और क्या मेथोडोलॉजी थी, उसके बेसिस पर हम उसको चेक करते हैं। देन अगर आपको कोई नई स्टोरी डेवलप करनी है, उसके लिए भी आपको सलाह देनी पड़ेगी, तो आप मार्केटिंग स्टोरी प्रैक्टिस जर्नल अगर आप देखे जो मार्केटिंग में होते हैं, उसमें नई नई स्टोरी को ग्रो करो। एक शिफ्ट फ्रेम होता है जर्नल ऑफ मार्केटिंग में है 2020 में। नाउ हम तो कोलैबोरेटिव कंजम्पशन की बात करेंगे, राइट? कोलैबोरेटिव कंजम्पशन के ऊपर अभी तक हम स्टोरी नहीं रखी, तो दे हैव कम अप विद शिफ्ट फ्रेमवर्क जो कोलैबोरेटिव कंजम्पशन के कंटेक्स्ट में होगा। स्टेटमेंट यही है कि कंटेक्चुअल मॉडल में प्रेजेंट डिप्लोमेटिक तो सबको ही पता है, आई विल नॉट पुट emphasize on that. And hybrid is any combination of two, और आजकल खाली डिप्लोमेटिक चलता भी नहीं, डिप्लोमेटिक should be followed by any SLR, maybe it's a structure, maybe it's thematic, anything, but you need to give along with your those beautiful pictures, you have to explain the why and the how. Okay, why and how is something which makes the paper to a great paper. ये स्ट्रक्चर है किसी भी पेपर का, ऐसा लगता है जैसे इंडिविजुअल पेपर का सिस्टम होता है। चैलेंज है एक्चुअली, पिक्चर मैंने जानबूझ के डाली कि एसएलआर पेपर में ब्रेक आना, एसएलआर पेपर में करना अपने आप में बहुत हिम्मत का रहा। हिम्मत तो इसलिए क्योंकि इट नीड्स द रोड ऑफ रीडिंग, ठीक है, इट नीड्स द रोड ऑफ रेगुलरिटी। इतनी देर में आप लिखो जो इसका पॉजिटिव और वही इसका नेगेटिव है। अगर इसका पॉजिटिव ये है कि इसके ऊपर पेपर नहीं है, वही इसका नेगेटिव है, तो मूवमेंट पेपर आगे तो फिर क्या करोगे, है ना? तो इसलिए जब भी दिमाग में आए कि प्रोफेसर आप लिख रहे हैं तो उसको चैलेंज समझिए, वो 20 मंडे हेल्थ चैलेंज लेते हैं, 3 महीने का आपको मेरी सर्विस का चैलेंज, अलग अलग चैलेंजेस हम लिख रहे हैं, जैसा चैलेंज लेकर उसको लिख डालो। So now I discuss about how to write the introduction, थोड़े छोटे पॉइंटर्स दूंगी एंड देयर मे बी हेल्पफुल टू यू। जब भी आप इंट्रोडक्शन प्लान करें उसको 4 स्टेजेस में आप प्लान करें। Whenever I write any paper, I start from here. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करके मैं ये देखती हूँ कि प्रीवियसली कोई काम हुआ है क्या यार, उसको भेजने सेम हुआ
तो मुसीबत, नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर मुसीबत। तो क्या करते हैं, आस पास का लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पेपर था AR इन फैशन, AR इन फैशन इंडस्ट्री। अब उसके ऊपर सॉरी वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी फैशन इंडस्ट्री का कुछ पेपर है। अब AR/VR इन फैशन नहीं था, पर AR/VR इन रिटेलिंग था, AR/VR इन अदर इंडस्ट्रीज था। तो व्हाट आई डिड कि मैंने उसका एक पैराग्राफ बनाया कि एस्टैब्लिश काम यहाँ पर हुआ है, शो द पेपर ऑल्सो ऐसे काम होगा एंड यू कैन यू नो एंड दिस इज मिस्टेक। तो वो एक पैराग्राफ आपको कंसाइज तरीके से लिखना। Don't confuse it with the literature review. Literature review is a detailed journey of any topic. बट इसमें आप बड़ा कंसाइज से 15-20-30 वर्ड में एक पेपर को एक्सप्लेन करेंगे 10-15 वर्ड में। और किसी भी जैसे मैंने कहा वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टैंडर्ड वर्ड लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग रेफरेंसेस, एक्सक्लूडिंग टेबल, लेट से 6000 मान के चलते हैं क्योंकि वो भी तो ऐड होकर लेंथ बढ़ाएंगे ना। तो 600 वर्ड से ऊपर इंट्रोडक्शन प्लानिंग है, बिल्कुल नहीं है इनिशियली, बाद में थोड़ा बहुत चाहिए होगा ऊपर नीचे कर लो। 600 वर्ड से इंट्रोडक्शन, मोटे मोटे 4 पैराग्राफ यानी एक पैराग्राफ तकरीबन 100 से 150 वर्ड। तो कोई 150-200 वर्ड का पैराग्राफ हो जाएगा तो कोई 100 का हो जाएगा। तो अपने आप को ना हल्का सा दिमाग में रखो, उससे थोड़ा इजी हो जाता है लिखना। आप अपनी जो भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं पेपर को करना बहुत इजी हो जाएगा। और आप मोटिवेटेड भी होंगे कि आज मैं 150-200 वर्ड लिखे, तो अपने आप को इतना ही टारगेट देखो कि आज मेरे को इसमें इतना ही काम करना। So from starting 0 words to 200 words would be your achievement of that, and pat yourself for that. कोई भी 3000-4000 वर्ड नहीं लिखोगे आप, ऐसा दिन कोई रेयर ही होता होगा, शायद वो भी नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम आप अगर बहुत लिख रहे हो तो 1500 से किसी दिन आपकी प्रोडक्टिविटी निकल आएगी। अगर आप पेपर में लिख रहे होगे, डिस्कशन लिख रहे होगे, बिल्कुल डूबे होगे, सर प्रोडक्टिविटी निकल रही है। कीपिंग इन माइंड एट होम, कीपिंग इन माइंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी डीन का फोन आ जाएगा, अभी स्टूडेंट बाहर खड़ा हो जाएगा, अभी और कुछ चलता रहेगा। अब इतना भी कर लेना एक दिन में तो बहुत बड़ी बात। तो एनकरेज योरसेल्फ कि आज मुझे इतना तैयार करना है, एक तो वो डूएबल है और दूसरा आपका वो एक एवरी स्टेप यू आर गोइंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द पेपर। ऐसे सोचो कि आज इंट्रोडक्शन पूरी करूंगी, ऐसे नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो बस अपने एक्सपीरियंस में बात शेयर करूँ। नाउ उसके बाद इमीडिएटली मैं डी पोजीशन में आएगा, क्योंकि पता होता है ना जब आप अपना काम ढूंढ रहे हो कि मुझे ये रिव्यू करना है, हाउ डू माय पेपर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, क्या इसमें कोई था नहीं फील्ड में मेरा पेपर दे रही हूँ मैं, क्या औरों ने सिर्फ स्पोकन इंडिया में डेवलप साइंस में डाल रही हूँ, क्या औरों की कीवर्ड लिस्ट की वो बहुत नैरो की मेरी थोड़ी गाइड है और वैसे वर्षा है ना। इस तरीके से आप अपने काम को व्हाटएवर इज द यूएस टू योर पेपर यू पोजीशन हो। ठीक है, फिर उसके बाद कभी कभी किसी किसी पेपर में जो ए और बी सेगमेंटल सेम ही होता है, कभी कभी अलग भी हो जाता है। तो जनरली ए में हम क्या करते हैं, जैसे ए में हम नंबर दे देते हैं बैकग्राउंड, जैसे अगर मैं एथनोसेंट्रिज्म की बात करूंगी तो क्या होता है, कैसे कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ऐसे से करती हूँ। तो रैशनली में हम ज्यादातर स्टेटिस्टिक्स के दौरान उसका उसका स्टेटिस्टिक्स दे देते थे, यूरोमॉनिटर ये कह रहा है, या अब एक प्लानमेंट में ये आया, इकोनॉमिक सर्वे में ये आया, इकोनॉमिक टाइम्स में ये आया, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे अगर टेक्रेशन की बात करूँ तो टेक्रेशन के ऊपर कर रही हूँ, तो टेक्रेशन से एक कंपनी को इतना नुकसान होता है, लॉयल्टी अगर लूज हो जाती है तो कंपनी को इसलिए एक कस्टमर नया बनाने के लिए 10 टाइम्स मोर दे हैव टू स्पेंड टू एक्वायर टू कस्टमर रेदर देन रिटेनिंग द ओरिजिनल। ऐसे करके अपने किसी डेटा से आपको दिखा दो कि जो हम दुनिया में बहुत विशेष करिए प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, आपको अपने रैशनल में बताना पड़ेगा। दैट प्रॉब्लम वेयर यू फोकस हियर ना, उसको आपको एक ग्लोबल प्रॉब्लम दिखाना पड़ेगा अगर आपको इंटरनेशनल जर्नल्स में जाना है। अगर आपको मेरे मोहल्ले की ये दिक्कत है मुझे सॉल्व करना है, वही हम नहीं चाहते, अपने आप देखो लोकल न्यूज़पेपर में छपा दो। So that problem, that topic should be maybe it's impacting more of the country, but it should look like ये कोई global problem है, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। It should look like that. Getting my point? तो ये आपको देखना है। Now मैंने कुछ किए, I'm sorry थोड़ा पीछे वालों को शायद ना दिख पाए, मैं कोशिश करती हूँ इसको enlarge करने की। तो ये आईसीटी के ऊपर पेपर है,
कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा सा यही क्या हुआ कि पहला पैराग्राफ देखो, ICT इज जनरली बिकमिंग मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड इन आवर सोसाइटी। फिर सारा पैराग्राफ ICT के बारे में बेसिक बताने में निकाल दिया। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिया था कि बैकग्राउंड में। दिस पेपर का टाइटल है हमारा ए सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट एम टू मेजर प्राइमरी ICT लिटरेसी। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेपर, ये इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ है। इट हैज गो टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ICT लिटरेसी, क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, स्कूल दे रहे हैं, किस तरीके से वो अडॉप्ट हो रहा है। नॉर्मल शुरू करके इससे एजुकेशन के ऊपर आ गए, एजुकेशन से करते करते यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा गैप पे आ गए कि मल्टीफेसिड है और इस तरीके से। नाउ जब आपको बताया इसी में फिर आगे वो नंबर पे आ गया, हांगकांग ऐसे नंबर पे है 84%, थोड़ा थोड़ा डेटा से उसको सपोर्ट करते जा रहे हैं कि मैं छोटी मोटी बातें नहीं कर रही भैया, देखो इतना परसेंटेज ऑफ डेटा इससे इम्पैक्ट हो रहा है, इतनी कंट्रीज इससे इम्पैक्ट हो रही है, तो आप इस तरीके से जेनरिक डेटा दो। एंड बाय डूइंग सो मैं किसी कोई ग्लोबल प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश कर, राइट। जैसे कि एला पेपर को कंट्री क्षेत्र से खोल नहीं सकता, तो लिटरेचर की बात कर। नाउ एक अलग पेपर है, ये BDA के ऊपर है, बिग डेटा एनालिसिस के ऊपर। नाउ इसने बोला कि पुराने लोगों ने अभी तक क्या काम किया। ये थर्ड पैराग्राफ, नोट ऑफ द सेम पेपर बट फॉर एनी अदर लोग, कि कैसे आपको बोलना है। तो ये कह रहे दिस रीजन पहला बोला टू दिस पास BDA एप्लीकेशन हैव बीन एक्सप्लोर्ड ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विद द मैसिव ग्रोथ ऑफ डेटा getting reported daily. This leaves a considerable gap even in the public sector management domain that could use BDA capability to solve the cater to issues. तो वो कह रहे हैं अभी तक जितनी स्टडी सारी प्राइवेट सेक्टर के डेटा भी पब्लिक की कितने बात की, तो यही हमें ज्ञान दे रहा है। तो दिस शुड बी थर्ड पैराग्राफ ऑफ द इंट्रोडक्शन, इस तरीके से। या जो भी 3-4 अवेलेबल लिटरेचर रिव्यू है तो आप उसका थोड़ा थोड़ा 10 से 15 20 वर्ड का समरी देखो, दो ही नॉट ऑफ द अदर पेपर बट ऑफ द SLR पेपर अवेलेबल इन द डोमेन जो रिलेटेड फील्ड के साथ। और अगर एग्जैक्ट है तो वो जरूर हो, क्योंकि वो तो और भी देना जरूरी बनता है, देन हाउ योर पेपर इज डिफरेंट, है ना। इस तरीके से लोग टेबुलर फॉर्मेट दे लेते हैं कि हम कैसे अलग से काम करें। कुछ लोग ये जो रिलेटेड वर्क है आजकल, पहले लिटरेचर की रिव्यू के जो पेपर आते थे आते तो उसमें लिटरेचर रिव्यू सेक्शन नहीं होते, सीधा हम मेथोडोलॉजी पे आ रहे थे सेक्शन 2 में। लेकिन लिटरेचर रिव्यू तो हम पूरी लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, पूरा पेपर इज ऑल अबाउट लिटरेचर, देयर इज नो पॉइंट टू ऐड लिटरेचर। बट नाउ इट इज रिव्यूअर्स हैव आस्किंग कि एक लिटरेचर रिलेटेड वर्क का लिटरेचर रिव्यू सेक्शन कर सकता हो, तो कभी कभी हमें करना पड़ता है। तो उसमें हमें थोड़ा सा ये बताना पड़ता है कैसे लिख सकते हो उसको कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर में हमें 5 स्टैंड नजर आई, 2 स्टैंड नजर आई, एक पेपर की डायरेक्शन ये कह रही है, दूसरे पेपर की डायरेक्शन ये कह रही है, तीसरे पेपर की डायरेक्शन ये कह रही है, या ये टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ शुरू होते होते यहाँ पे पहुंचा। एक जेनरिक पैराग्राफ फॉर्म, नॉट तो वेरी डिटेल्ड क्योंकि वो हम नीचे देने वाले। तो किस तरीके से देखो, अगर आप थीम्स पे बात करने वाले हो नीचे, तो आप उसकी जर्नी बता दो कि वो टॉपिक कब शुरू हुआ, किसने ज्यादा काम किया और ऐसे। और अगर आप थीम की बात नीचे नहीं करने वाले हो तो थीमेटिक एनालिसिस की फॉर्म में एक पैराग्राफ लिख के चलिए, सो दैट यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कैसे इसको एनरिच करना है। उसके बाद अपने पेपर को प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन, आपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बता दिया, टॉपिक आपने उसका रैशनल बता दिया कि मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ, आपने ये बता दिया थर्ड पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में कि व्हाट अर्लियर पेपर हैज डन। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने क्या। So, with current study undertaken, we explore systematic literature of emerging management discipline and applications in these PMAs that drive BDA usage. We explore these theoretical yardsticks to guide the current study results in the form of providing solid foundation for future IS research. All relevant applications can be identified evaluating in how much prior work has been done. तो इस तरीके से आप देखना एक्सप्लेन कर दो। Now ये one format है। Before writing any SLR paper and before planning the paper, just go and read few SLR papers. That gives you an idea how to make the structure of the paper. किसी पेपर से एक या 2 या 3 पेपर की कम्बिनेशन स्ट्रक्चर का अपना पेपर को कंबाइन करें। Of course,
आपके खिलाफ पेपर किस तरीके से फाइनल बनेगा, दैट पे डिपेंड किस तरह की स्टडी आपके डोमेन में की हुई है। अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टडी नहीं हुई तो आप एडीएम फ्रेमवर्क नहीं देख रहे हो, कैसे लोग एंटीसीडेंट सिग्नल आउटकम देंगे, हो ही नहीं पाएगा, ना मेटा एनालिसिस हो पाएगा। इस तरह के रिव्यूज नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरीके से अलग अलग पेपर से बताया हुआ है कि आप अपने काम को यूनिकनेस से करें, टेबुलर फॉर्म में भी आप अपने काम की यूनिकनेस को दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे बता रहे हो कि हमने 12 क्रेडिट के ऊपर काम किया, मैं इसलिए बता रही हूँ कल आप मुझे ऑर्डर करो तो मैं 50 बता कर दे दिया तो 12 का, पर कह रही हूँ सबके लिए दैट डिपेंड्स अपॉन कितना काम उस डोमेन में हुआ होगा। ये अलग अलग एग्जाम्पल है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये भी बता देना चाहिए, कभी कभी इंट्रोडक्शन में भी बता देते हैं कि हमारे काम में 10 साल का पीरियड चूज किया गया, ठीक है, और हमने सिर्फ आईटी एडॉप्शन के ऊपर काम किया। आप इंट्रो में भी बता सकते हो अगर बताने का, डिपेंडिंग आपके काम का फ्लो कैसे आ रहा है, एंड आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन में भी बताओ, so that depends how you want to put it. Now, like any other empirical paper, this paper has also objective, but its objective are very clear. The first objective is to map the existing literature, and the second objective is to suggest the future work. तो दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप उसको 15% के फॉर्म में लिख दो, 3 लाइनों के फॉर्म में लिख दो, इन वट एवर वे। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव से ही आपको पता चलेगा कि मेरा रिव्यू का स्कोप क्या है। इसलिए मैंने कहा लिटरेचर रिव्यू में आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होना चाहिए। कभी कभी इतना लिटरेचर देख रहे हम खुद भूल जाते हैं वाई स्टार्टिंग, तो ये बिल्कुल ये वाली बात मैम आप आओ। कोई ना नहीं आप With immense pleasure, it is my privilege to introduce our guest of honor, Advocate Surya Prakash Khatri. We welcome you, sir, to the men's. We begin with the lamp lighting ceremony and Saraswati Vandan. सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातन गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। As we invoke the blessings of Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom,
Let us embrace the spirit of learning and enlightenment. May her divine presence guide us through this event, filling our hearts with intellect and knowledge. With this, I request our August gathering. They are back. Let us invoke the blessings of Saraswati, the goddess of wisdom and knowledge, and let us embrace the spirit of learning and entitlement. May her divine presence guide us through this event, filling our hearts with intellect and knowledge. With this, we request all the dignitaries to kindly come forward for the lamp lighting ceremony and Saraswati Vandana. I'm delighted to begin with the felicitation ceremony. I request Professor Dr. Rashni Malhotra Dhingra ma'am, Director MAIMS, and all HODs to welcome our guest of honor, Advocate Surya Prakash Khatri ji, with shawl, sapling, and memento. सर आ जाएंगे Now I request Director Ma'am to welcome Dr. Pooja Goyal, Associate Professor at Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi, with memento. मेरा ही है क्या? It is my privilege to introduce our guest of honor, Advocate Surya Prakash Khatri. Sir belongs to a zamindar and educated family. He is a social worker, politician, and a renowned senior advocate. He has been practicing in civil as well as criminal sides in Delhi High Court and district courts. One of the famous cases dealt by him was defending Rahul Mahajan, son of Pramod Mahajan, BJP chief. He is a vice president of Delhi Study Group. He contested for MLA election from Kamla Nagar and Timarpur Vidhan Sabha of Delhi from BJP in 2003 and 2008 respectively. Mr. Surya Prakash Khatri was elected as a member of Bar Council of Delhi in the year 1998
and this is his fourth consecutive tenure as an elected member of Bar Council of Delhi. He is presently the chairman of Bar Council of Delhi, as he has been declared elected unopposed. It is his second stint as chairman of Bar Council of Delhi. He is a seasoned lawyer, popular leader of bar, and a known figure in legal fraternity. He has been working for the welfare of members of bar and had been very sensitive to any kind of the issues raised by any member of the bar. He has been thoroughly committed for the betterment of legal fraternity and has proved the same in his earlier tenures also. Thank you, sir, for your esteemed presence and joining us here. Now I request Director Ma'am to come forward for the welcome address. Professor Dr. Rajni Malhotra Jingra. Good afternoon. First of all, I will say sorry to all the participants who are joining us online also. Because inaugural usually happens in the morning, and in between we are conducting inaugural session. But the reason is our guest of honor is busy with the matter, and due to the rainy season, he is stuck in the traffic also. That is why we postponed our inaugural session in the afternoon, and that is the reason that we interrupted you in between. You are learning research skills, and now we are taking you towards, you can say, that new criminal law, that what are new criminal laws, and that you can say analysis of new criminal laws. So for this, I'm apologies first of all. Secondly, because the task that is given to me is to give the welcome address. So I welcome sir, because the Monica ma'am has given you the brief of sir. He is a seasoned senior advocate, and he will be telling us the nitty-gritties of new criminal law. We have discussed this thing in my office, that what are the, you can say that can be the how the problem can be faced when we are going to apply this law, and sir will be explaining this you in detail. Sir, I welcome you. Thank you, ma'am. Now I request sir to share your treasure of wisdom and knowledge with us. Sir, request you to take over. Thank you, ma'am. Close the door. Uh, Director Professor Rajni Malhotra ji, Professor Pooja Goyal, Delhi Delhi University, Delhi School of Economics, Delhi University, and all the HODs. मैम को एक्चुअली में सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था, लेट मैन बहुत है। तो मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूँ, हालांकि कुछ चीजें लिख के भी लाया हूँ, पर मैं इस तरीके की ऑडियंस को पहली बारी एड्रेस कर रहा हूँ, तो कोई घबराहट नहीं है। 5-5, 10-10, 20-20 हजार लोगों के बीच में मैंने स्पीच दी है, पर यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि मुझे लग रहा है कि मुझे बड़ी गौर से देखा जाएगा, मेरे हर शब्द को जो है उसका मीनिंग निकाला जाए, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस, बहुत ज्यादा नहीं, और होना भी चाहिए इंटेलेक्चुअल्स के सामने, क्योंकि आई एम इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में तो वो एक बारी क्या हुआ कि हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी स्पीच दे रहे, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके यहाँ पर जो पानी आता है ना सिंचाई का, तो आपको पता है उस सिंचाई के पानी में से बिजली निकाल लेते हैं, और वो पानी जो है वो सिंचाई के जो है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खराब हो जाता है। तो
तो उनके जो पीएस थे उनके साथ जो बैठे थे दूसरे मिनिस्टर कहने लगे चौधरी साहब ऐसा कुछ नहीं है। बोला चुप बैठ जा, जब मुझे ही नहीं पता तो इनको कहां पता होगा। तो लेकिन यहाँ वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर तो आपको मेरे से ज्यादा पता है, आपकी नॉलेज, आपके सब्जेक्ट्स, आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन आप लोग मेहनत कर कर, और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा भी नहीं, आई वॉज स्पोर्ट्स पर्सन सिंस बिगनिंग, और मुझे जब सोना भी होता था तो कहीं नींद नहीं आ रही थी तो किताब साथ में रख लेता तो नींद अच्छी आ जाए। लेकिन मैं फिर भी बहुत कामयाब रहा अपनी जिंदगी में, और मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि मैं प्रोफेसर नहीं बना या मैं हाईकोर्ट का जज नहीं बना, पर मैं एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बना। मेहनत किसी की मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा होती है, किसी की फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा होती है। मैं लिख के लाया, मुझे आज क्या बोलना है, लेकिन मैं आज इसको बोलूंगा नहीं, सब इसमें है। ये जो आपका जो सब्जेक्ट है ना, इंपावरिंग फैकल्टी कल्टिवेटिंग रिसर्च एक्सीलेंस, ये मैंने इस पे लिखा, क्योंकि मुझे ये जो चीजें है ना, ये मुझे यहां से बोलनी पड़ेगी, लेकिन जो चीज मैं बोलना चाहता हूं मैम, वो मैं यहां से बोलना, क्योंकि यहां से जो भी बात मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा। यहां से मैं कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ। यहाँ तो 2 पेज लिखे, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, आप अच्छी सी तालियां बजाओगे, मैं कि सर आए थे चले गए, चेयरमैन साहब आए थे बार काउंसिल दिल्ली। लेकिन ये जितनी बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये मेरे को एक दिन में नहीं आई है, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत जमाने को देखना पड़ा है, तब आदमी को एक्सपीरियंस आता है। किताबों में तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो जो भी जिंदगी के अंदर किताबों में लिखा गया है वो पहले प्रैक्टिकल हुआ है, तभी वो किताबों में लिखा गया है। तो मोर इंपॉर्टेंट चीज इज नॉट बुक्स, मोर इंपॉर्टेंट चीज इज प्रैक्टिकल, जो आपका सब्जेक्ट है। मैम ने कहा, मुझे ये लगा था जब मुझे इनविटेशन आया तो आई वॉज अंडर दिस इंप्रेशन कि मुझे शायद स्टूडेंट्स के बीच में जाना है। तो मुझे लगा कि जब हम स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे तो मेरे को जो अपना लॉ का एक्सपीरियंस है, लॉ में किस तरीके से बच्चों आते हैं, किस तरीके से बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है और बच्चों को क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड दैट लेक्चर इन माई माइंड। तो मुझे लगा कि जाएंगे बोल देंगे, क्योंकि वो तो हमारे को रटा ही हुआ है। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि मेरे को तो फैकल्टीज के सामने बोलना है, और फैकल्टीज में भी सारे फैकल्टीज मिक्स है आपके यहाँ पे, और उसमें भी लॉ पे नहीं बोलना, सब मिक्स है। तो इसलिए मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया जो मैं लिख के लाया, वो हालांकि लिख के लाया तो आपके लिए। देखो, मेरा समझना ये है, आज के टाइम पे हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, हम उनकी सिर्फ अंग्रेजी ठीक कर रहे हैं, हम उनको बुक्स में भी पढ़ा रहे हैं, हम उनका इकोनॉमिक्स भी ठीक कर रहे हैं, कॉमर्स भी ठीक कर रहे हैं, साइंस भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है हमारे से। हम मॉरल्स को खत्म कर रहे हैं, हम मॉरल्स नहीं पढ़ा रहे। और जब मॉरल्स इस कंट्री के बच्चों के खत्म हो जाते हैं, वो कंट्री हमेशा खतरे में आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो समाज और सोसाइटी किस तरफ जा रहा है। मैं आपसे इसलिए ये सब बात कर सकता हूं क्योंकि आप इस चीज को समझते हैं।
लेकिन आज की जनरेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत अच्छा पीछे किसी ने मुझे भेजा था कि फादर और मदर की वैल्यू आदमी को पता लगते लगते 60 साल हो जाती है, और वो सच लिखा था उसने। शुरू में लगता है कि मेरे पेरेंट्स हीरो हैं, फिर लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को नॉलेज है, अच्छे हैं। फिर थोड़े से दिन बाद कहता है कि मेरे पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं। फिर वो जिंदगी उसकी गुजरती चली जाती है, गुजरती चली जाती है, फिर कहता है मेरे पेरेंट्स बेवकूफ हैं। और उसके बाद जब उसके उसके खुद के बच्चे आ जाते हैं, तब वो कहता है कुछ खानदान से सीखो, हमारे पेरेंट्स कितने अच्छे थे। कब उसको एहसास होता है? जब उसके पेरेंट्स की लाइफ चली गई। तो मुझे आज के जमाने में जो सबसे बड़ी चिंता है ना, वो ये है कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और हम लोग सब चीजों पे चर्चा करना चाहते, हम चर्चा भी करते हैं, लेकिन हम थक चुके हैं। डाइवोर्स फैशन हो गया, शादी आज एक जुआ बन गई है। फैमिलीज की पोजीशन ये है कि हर लोगों को न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, उसके बाद डिप्रेशन है, उसके बाद झगड़े हैं, उसके बाद डाइवोर्स है, और डाइवोर्स आज के टाइम में कोर्ट में फैशन बन गया है। अगर मैं आपको सच कहूं तो 85% आज के टाइम में डाइवोर्स है। मेरे कोर्ट के अंदर समाज में जब भी कोई चेंज आता है तो 3 वर्ग को सबसे पहले पता लगता है। मैं तो चौथा वर्ग भी कहूंगा। पुलिस, डॉक्टर, वकील एंड टीचर। ये 4 वर्ग ऐसे हैं जिनको सबसे पहले पता लगता है कि समाज में क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि वो नई जनरेशन को देखते हैं। और नई जनरेशन का जो एक्ट होता है उसको पुलिस देखती है और वकील देखता है, और उसके अंदर जो विकृतियां आती हैं उसको डॉक्टर देखता है। ये 4 वर्ग ऐसे हैं जिनको पता लगता है। हम लोग सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि बच्चों के मॉरल्स खत्म होते जा रहे हैं। एक ही घर के अंदर 6 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, 6 कमरे हैं, सब अपने अपने कमरों में बंद है, सबकी कुंडियां लगी हुई हैं अंदर, कोई किसी से डिस्कस करना नहीं चाहता। बात भी करनी है तो एक कमरे से दूसरे कमरे पे फोन पे बात कर लेते हैं। और घर में 6 नौकर, 6 नौकर होने के बाद मैम अभी मैं एक, जैसे आपका ये कॉलेज है, ऐसे ही एक कॉलेज में मैं अमरावती आंध्र प्रदेश में एक इंस्पेक्शन पे गया था, और मेरे साथ एक हाई कोर्ट के जज और एक एनएलयू के प्रोफेसर मेरे साथ थे। तो हमें सरप्राइज चेकिंग पे जाना। उस बात पे मैं बाद में आऊंगा कि मैंने वहां क्या देखा। दैट विल बी आपके लिए आई ओपनर होगा वो, कि लॉ कॉलेज था, और उस लॉ कॉलेज के अंदर बहुत बहुत सुंदर बिल्डिंग थी। जब हम उस लॉ कॉलेज के अंदर घुसे, लिफ्ट वहां थी, रूम बहुत सुंदर थे, मूड कोर्ट भी बना हुआ था, लाइब्रेरी भी बनी हुई थी, ई लाइब्रेरी भी थी। स्टाफ में पूरे कॉलेज में 10-12 लोग भी थे वहां पे। कैन यू बिलीव, 912 में से 1-2 स्टूडेंट वहां बैठे हुए थे, और वो पिछले 9 साल से डिग्रियां ले रहे हैं। वो कॉलेज 9 साल से डिग्रियां बांट रहा है। 9 साल से डिग्रियां बांट रहा है, मतलब कि उसने कितने बच्चे निकाल दिए उस कॉलेज से, और उन बच्चों का फ्यूचर अब क्या हुआ होगा। ये मैं लॉ कॉलेज की बात बता रहा हूँ जब हम वहां पहुंचे। अब आप कहोगे कि हम, उन्होंने हमें बहुत घुमाने की कोशिश की।
हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमें भेजा था तो डीजी आंध्र प्रदेश को डायरेक्शंस थी कि ये टीम आ रही है, इनको प्रोटेक्ट करो, करके रखना है। अब हम गए भी आंध्र प्रदेश में, तो मैंने उनसे पूछा, और हमने जब कमरे देखे, तो जब हमने उनके बाथरूम देखे, तो हमने अंदाजा लगा दिया कि कमरों के ऊपर जाले लगे हुए थे। हमने कहा बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। भाई इस समय तो कोई कोरोना है ही नहीं, ऑनलाइन किस लिए पढ़ रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि सीसीटीवी फुटेज आपका वो कहाँ है, हार्ड डिस्क कहाँ रखा आपका? कहते हैं जी वो तो सिटी के अंदर मालिक के घर पर है। मतलब ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ स्कूल। तो मैंने फिर उसको लास्ट में कहा अच्छा एक काम करो, आप चुपचाप से ना मेरे को पिछले 1 साल के बिजली के बिल ले आओ। अब उसको, हम तो लॉयर भी है, वकील भी थे। हमने कहा आप 1 साल के बिजली के बिल ले आओ, आई वॉन्ट टू सी कि जब आपके बच्चे यहाँ थे तो आपका बिल क्या आ रहा है। तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो प्रिंसिपल था, उसके आकर पूछे। मैंने उसको कहा देखो, इफ यू विल कोऑपरेट अस देन वी विल, माइट बी वी विल, हम आपको हो सकता है काउंसलिंग के लिए भेज दें, अदरवाइज विल टेक द एक्शन। यू विल नॉट बिलीव, उसने हमारे सामने से सारा कन्फेशन दे दिया कि जी हम सिर्फ पेपर देने के लिए बच्चों को बुलाते हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। और वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज 9 साल से बच्चों को डिग्रियां बांट रहा है, और वहां पर जाने से पहले हमारे को कोई नोटिस नहीं था कि मैं कहां जाना है। मुझे अभी एक और इंस्पेक्शन पे जाना है, तो उसका नाम हम भी नहीं पूछते हमें कहां जाना है, और सुप्रीम कोर्ट हमें भेजती है। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है जजों की। तो ये तो है सिचुएशन। तो मैं उसी दौरान शाम को जब मैं बैठा, तो मुझे जो प्रोफेसर ने जो बात बताई थी, दैट वाज आई ओपनर फॉर मी। उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्टल में, कॉलेज के, बहुत अच्छा खाना बनता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खाते हॉस्टल के, और उनके माँ बाप बहुत हैवी पेमेंट करते हैं हमें खाने के लिए। कहते हैं कि हमारे पास बच्चों के पेरेंट्स के फोन आते हैं कि जी हमारा, वो कहते हैं, मैं वार्डन था, फोन आते हैं कि हमारे बच्चे ने पिछले 12 दिन से हमसे बात नहीं करी। तो उसने कहा मैम मैं आपको ये तो बता सकता हूँ, उनके पेरेंट्स को बोला कि आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में है और वो सेफ है। अब वो आपसे बात नहीं कर रहा, उसके लिए मैं क्या बताऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज उसने क्या बताई, और खाने का तो मैंने आपको बता ही दिया। तीसरी चीज ये है कि उन्होंने बताया कि जब हमारे यहाँ जैसे दिवाली है, कोई भी त्योहार आता है, होली आती है, दिवाली आती है, बड़े दिनों की छुट्टियां आती है, कहते हैं बच्चे अपने स्कूल में अपने घरों में नहीं जाते, हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल से ही 4 दिन 6 दिन के लिए आसपास कहीं घूमने चले जाते हैं, दोबारा हॉस्टल आ जाते हैं। तो बच्चे, दे डोंट वांट इंटरेक्ट विद देयर ओन पेरेंट्स, उनसे बात ही नहीं करना चाहते। वो पेरेंट्स जिन्होंने बचपन से लेके उनको पाला है, जो इनकी फीस दे रहे हैं, इनके कपड़ों के पैसे दे रहे हैं, इनको लैपटॉप खरीद के दे रहे हैं, इनको मोबाइल फोन दे रहे हैं, इनके खाने का खर्चा दे रहे हैं, इनके घूमने का खर्चा दे रहे हैं, आज की जनरेशन उनसे बात नहीं करना चाहती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम इतना पढ़ा रहे हैं, हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं? आप कुछ भी पढ़ाए, पहले का टाइम था, टीचर्स का एक सम्मान, रिस्पेक्ट होता, और मेरे पास जो मैं आज इतना बड़ा जो भी कुछ बना, मैंने अपनी जिंदगी में 27 चुनाव लड़े, 27, और 27 में से मैं 25 चुनाव जीता हूं लगातार, मैं कोई चुनाव नहीं आता। तो वो जो 25 चुनाव में जीता, उसका अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो मेरे माँ बाप और मेरे गुरु को जाता है, मेरे टीचर को जाता है। मैंने कभी भी अपने टीचर्स और अपने गुरु का सम्मान में और अपने पेरेंट्स के सम्मान में कभी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये नाता अब टूट गया है। इसीलिए
अल्टीमेटली सब कुछ घूमकर जो है ना, वो इस देश में धर्म और देशभक्ति और धर्म, इन दोनों से भी लोग भटक रहे हैं। और माँ बाप से तो भटक ही गए, पेरेंट्स से भटक गए। मेरे पास कल एक वीडियो आया है और फ्री फॉर ऑल फाइट चल रही है वकीलों के बीच में। एक एसडीएमडी कोर्ट के अंदर कल ही आया वो, मैंने आज ही नोटिस इशू किया है। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कहने को तो वो वकील बन गए, शिक्षा भी लेके चले गए, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? दिल्ली में आज 1,75,000 लॉयर्स मेरे अंडर रजिस्टर्ड है। आपको पता है काम कितने लोगों के पास है? मैक्सिमम 10,000 मैक्सिमम। 1,60,000 लोग क्या कर रहे हैं? चलो मैं 1,60,000 में से कह देता हूं 1 लाख भी किसी कोई लोन करा के बिजनेस कोई और कर रहा होगा, कोई कहीं होगा, घर में सो रहा होगा, लेकिन वो बाकी के 60,000 लोग भी क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। वो 60,000 लोग दलाली कर रहे हैं, वो 60,000 लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वो 60,000 लोगों में वो देख रहे हैं कहाँ बिल्डिंग बन रही है, कहाँ बोरिंग हो रही है, किसका छज्जा बाहर निकला हुआ है, कहाँ कहाँ पर बिल्डर्स हैं, एक्सटॉर्शनर्स। लोगों के पास काम नहीं है। बिजनेस हम बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, जॉब्स नहीं है। मॉडल खत्म हो गए, जॉबलेस हो गए, जाएंगे कहां? इसके ऊपर कभी सोचो। हमारे पास फैकल्टी के अंदर हमारे पास एक ये भी एक हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं कहूंगा, दैट पार्ट ऑफ आवर स्टडी हमारे पास इनहेरेंस होना चाहिए कि हम जिस बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं, क्या उसके फ्यूचर के बारे में भी हम सोच रहे हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अपने आप को सिर्फ इस फैकल्टी तक या इस फैकल्टी तक सीमित मत रखिए। मैं नीचे आया था, मेरे को आके बोल के जाना था, सडनली मैम ने एक आइडिया दिया मुझे। वो क्रेडिट इनको जाता है क्योंकि आइडिया इनके दिमाग में आया। इन्होंने कहा मूड कोर्ट कराना है। तो मैंने कहा जी उसके लिए क्या करना है? कह रहे जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया मूड कोर्ट कराती है, उसकी पार्टनरशिप में मूड कोर्ट होता है। तो मैंने कहा तो उसके लिए उनसे बात करनी है। मुझे लगा ये बहुत बड़ा काम है। मैंने कहा जी पर इसमें होता क्या है? उन्होंने कुछ नहीं होता, 3-4 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो मैंने कहा बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों करेगी? बार काउंसिल दिल्ली करेगी ना। मैंने कहा मैं आप मुझे चिट्ठी भेज दीजिएगा, मैं आई विल सेंड डाउन। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के हित में ऑल इंडिया का मूड कोर्ट होगा। इसी तरीके से मैं बताता हूं कि जैसे वकील होता है, सर आप लोग गवर्नमेंट, आप लोग जॉब में हैं, आपकी सैलरी आती है, सरकारी आदमी की सैलरी आती है, प्राइवेट आदमी की सैलरी आती है, व्यापारी जो दुकान चलाता है उसके पास आती है, उसके पास बिजनेस है। अगर मान लो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास बिजनेस है। आपको पता है एक वकील अगर बीमार पड़ जाए, उसी दिन उसके पैसे बंद हो जाते हैं। कितना बड़ा, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसका क्लाइंट उसी दिन दूसरे वकील को हायर कर लेगा। और उस वकील के ऊपर जिम्मेवारी क्या क्या? उसको खाना खाना है, उसको अपने बच्चों की फीस देनी है, उसको अपने मकान का किराया देना है, उसको दूध वाले का बिल देना है, बिजली वाले का बिल देना है, पानी वाले का बिल देना है, उसको बच्चों की फीस के अलावा उसको खाने के लिए भी चाहिए, उसको फ्यूचर बीमारी के लिए भी बचा के रखना है। जिस दिन वो बीमार हो जाएगा उस दिन जीरो हो जाएगा। हमने सोचा इसके ऊपर, तो हमने एक नई चीज सोची और मैंने अरुण जेटली जी से बात करी। और मैम अरुण जेटली जी से बात करके तो हमने कहा हम ऐसा करते हैं, टिकट बनाते हैं
हमने सिर्फ 5 रुपए की 25 रुपए की होगी, हमने 5 रुपए की एक टिकट बनाई, उसका एडवोकेट वेलफेयर फंड, और हमने कहा जो भी वकालतनामा फाइल होगा किसी भी केस में, उसके ऊपर वो एडवोकेट वेलफेयर फंड की टिकट लगी। आपको पता है मेरे पास अब कितने पैसे हैं? मेरे पास 78 करोड़ रुपया इन अंडर 78 करोड़ रुपीज है मेरे पास। और जब हमारे वकील बीमार हो जाते हैं, उनके लिए कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं। कोरोना के अंदर मेरी बार काउंसिल ने 27 करोड़ रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए मैंने अपने वकीलों के लिए। 27 करोड़ रुपीज, खाना, उनकी मेडिसिन, हॉस्पिटल, विल टेक केयर ऑफ दिस। तो ये क्या, वो कहां से आया? ये वकील से नहीं आया, ये बार काउंसिल के अंदर के दिमाग से आया। और उसमें हमने जो टिकट दी, उस टिकट को अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने उस टिकट को जारी किया। और उस टिकट से हम सिर्फ एक वकील से आज सिर्फ 50 रुपए, ओनली 50 रुपीज पर ईयर लेते हैं। और उसको अगर वो बीमार पड़ जाए तो आपको पता है मैं मैक्सिमम कितने रुपीज देता हूं? अब मैंने उस कैप को बढ़ा दिया, कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट तक के केसेस हमारे पास आते हैं। जवान लड़के हैं, एक्सीडेंट, जवान वकील है, यंग लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। तो अब उससे क्या हुआ, मैं 2,50,000 रुपए से लेके मैंने 15 लाख रुपए तक के लोगों के बिल पे किए हैं बार काउंसिल दिल्ली से, 15 लाख रुपए तक। इसके अलावा फिर क्या हुआ, अब कंपटीशन आ गया गवर्नमेंट में। दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ रुपए सालाना हमें देना शुरू कर दिया। 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस वो देते हैं और 15 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस मैं देता हूं। तो इनको सिक्योर कैसे करना है? हमें सिर्फ इनको पढ़ाना नहीं है, बच्चों को आगे सिक्योर कैसे करना है, तो कई चीजें हैं आपको जो करनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सिर्फ इसी बात तक मत रहिएगा कि भाई मेरा काम, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इस तक मत रहिएगा मेरी ड्यूटी 9 बजे से 5 बजे तक है, उसके बाद मेरी सैलरी आ जानी है ना। आप एक बहुत बड़ी भूमिका में बैठे हैं यहां पर, बहुत बड़ी भूमिका में बैठे हैं, जिसको बच्चे को माँ बाप नहीं समझा सकते, आप उसका माइंड चेंज कर सकते। और आपके यहाँ पे मैम काउंसलिंग सेक्शन है, बहुत अच्छी बात है। उनको आप कभी बच्चों को बुला के उनको गेज भी करते हैं कि काउंसलिंग भी करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद ही देखिएगा, दैट इज, मैंने कोर्टों में भी मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सी लेडीज लॉयर्स हैं, उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए मैंने काउंसलर्स रख रहा हूं मैं उनको। बच्चों के लिए अभी आने वाले टाइम में हम लोग कुछ लेडीज लॉयर्स ऐसी हैं जिनके पास फैमिली भी कैरी कर रही हैं, हस्बैंड से सपोर्ट नहीं है, बच्चा भी साथ में है, तो उनके लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स उनको केयर करने के लिए। तो आपको मैं अपनी बात इतनी कहूंगा, और ये बात कह के मैं अपनी बात को विराम भी इसलिए दूंगा, बोल तो मैं बहुत देर तक सकता हूं, लेकिन आपने सुबह से वेट कर रहे थे, और नेता को तो वैसे ही बोलने का बहुत शौक होता है, एक बार माइक मिल जाए तो छोड़ता नहीं है। तो मैं इस रेपुटेशन के साथ नहीं जाना चाहता। जितने मेरी दिल की बातें थी, जो मैं आजकल बच्चों को लेके स्पेशली बहुत चिंतित रहता हूँ, उतनी मैं बात आपसे करना चाहता था। और खासकर कम से कम जितनी भी गर्ल्स आपके यहाँ पर पढ़ती हैं, प्लीज उनको एक बात जरूर समझाइएगा। कल, आज वो बच्चियां हैं, कल को उनकी शादियां भी होंगी। अपने बच्चे को जो है ना, सबसे बड़ी गलती माँ से होती है, अपने बच्चे को खाना अपने हाथ से खिलाएं। फिर शिकायत करती हैं कि हमारा बच्चा हमारी सुनता ही नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी ये बात दिमाग में इसलिए आ गई क्योंकि आप सब लोगों को देखकर बच्चे को
हो क्या रहा है इस जनरेशन में, बच्चे को उठा कौन रही है मेल, बच्चे को तैयार कौन कर रही है मेल, बच्चे को स्कूल कौन लेके जा रही है मेल, बच्चा जब वापस आता है घर में तो उसको कौन मिलता है मेल। फिर माँ कहती है कि बच्चा मेरी सुनता नहीं है। आप खुद कभी ना अपने माँ के हाथ की रोटी खाई होगी और एक नौकर के हाथ की रोटी खाई, तब आपको एहसास होगा कि आप अपने बच्चे को कैसे पालें। क्योंकि जो माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार, जो उसकी माँ की भावनाओं से जो रोटी और खाना उसके पेट में जाता है, उससे उनके विचार बदलते हैं। थैंक यू सो मच। Ma'am, the patient income consider. मैं मिंटू हाँ ले जाओ उनके साथ, आप जाओ साथ में रहेंगे। What do they do then? I wind up करती हूँ। I request all to please be seated. We are wrapping up in another 10 minutes. कोई नहीं करता ना, इसको करवाइए, आपको पंखा चला रही है। So till now we discussed कि थोड़ा ऑफबीट हो रहा है तुम्हारे लिए, ऐसा लग रहा है रेडियो एफएम की चैनल मिस हो गए, तो रिक्वेस्ट कर दी। पर मेरे लिए अच्छा लगा, नींद से जागृत है, तो अच्छा थोड़ा पहले आ जाते तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। Nonetheless, so quickly I have noticed your body language. तो मैं बहुत इसमें बेसिक 3-4 चीजें बताती हूँ जो मेन आपके काम आने वाली है। रेस्ट यू कैन लर्न फ्रॉम रीडिंग द एसएलआर। The first thing I told you the difference between LR and SLR. Second thing I told you why SLR is becoming important and how it can contribute towards the research journey. Next thing is that how to find out the keywords. As I told you कि आप सबसे पहले अपने रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है उसको अभ्यास कर लीजिए। तो 3 चीज है, प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग। नाउ इन प्लानिंग सबसे पहला काम हो गया कि आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करें। नाउ वो कीवर्ड फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट समटाइम्स यू नो व्हाट आर द कीवर्ड्स ऑफ योर टॉपिक। द सेकंड थिंग इज दैट एग्जिस्टिंग एसएलआर है, जैसे एआई के ऊपर बात हुई तो एआई के बहुत सारे पेरेंटिंग वर्ड्स है ना। अब उसमें आप क्या करें कि अगर आप एआई डिटेलिंग फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं तो एआई डिटेलिंग के कोर्स से नहीं पेपर कभी आप कर रहे हैं, बट यू कैन गो फॉर एआई इन बैंकिंग, यू कैन गो फॉर एआई इन टूरिज्म। तो अगर कोई ऐसा पेपर आपकी साइट में आता है ये जनरल एआई के ऊपर कोई चला देता है, so you can take a few of the keywords from those pages. वहां से आप अपनी लिस्ट को थोड़ा सा और एग्जॉस्टिव बना सकते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट लेवल क्या कर सकते हैं कि जिन्होंने भी एआई के डोमेन में काम किया, यू कैन सेंड योर कीवर्ड्स टू देम एंड आस्क दी एक बार इसको देख लीजिए whether you find it is exhaustive or not। तो अगर आप दो कर रहे हैं जैसे एआई इन रिटेलिंग,
तो आपके पास दो सेट ऑफ कीवर्ड हो गए, एक रिलेटेड टू एआई, द अनदर इज रिलेटेड टू रिटेलिंग। So that you need to see और उसके combinations बनाकर focus के and वो के साथ जो रिलेटेड होते हैं we move further। सर डेवलपमेंट ऑफ सर्च स्ट्रिंग यही होता है जो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। जैसे इंटरनेट गवर्नेंस की उन्होंने बात की थी, ठीक है, गवर्नेंस की बात की थी लेकर आ, तो उन्होंने कहा इंटरनेट गवर्न, ई गवर्नमेंट, ओपन डेटा, मोबाइल गवर्नमेंट, आईटी। तो इंटरनेट से रिलेटेड होगा ओपन, आईटी, इंटरनेट, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा गवर्न, देन ई सर्विस, देन इस तरह के इन्होंने डेटा निकाले और उसकी कॉम्बिनेशन बनाए एंड दे रन द सर्च क्वेरी। ये इतना ही इंपॉर्टेंस कैरी करता है जितना एक क्वांटिटेटिव स्टडी में आपका क्वेश्चनर इंपॉर्टेंस करेगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कीवर्ड में गलती कर दी तो वो पेपर आपको लिटरेचर से एक्सपेक्ट ही नहीं होगा, तो फिर कैसे इसको पकड़ोगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सीरियस जॉब मानते हैं, सिमिलरली हमें कीवर्ड स्ट्रेन को भी सीरियस जॉब मानकर आगे बढ़ना है। देन इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में आपका जैसे हमने कई बार बात की, इस तरीके का प्रिज्मा डायग्राम हमारा बन जाता है। तो हम बता रहे हैं कि हमने एक और क्वेश्चन आता है कितने डेटाबेस को हम टेबल कर दिए हैं। देखो उसका कोई आंसर नहीं है, आपको बहुत सारे मिल जाए सोल्यूशन, बट आई विल टेल यू हमारे मैनेजमेंट में स्कोपस एंड वेब ऑफ सेंसर टू कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस। अगर आपने इनसे कर लिया तो मोर देन 95% ऑफ पेपर्स आपके कैप्चर करेंगे। और क्योंकि आपको बाद में क्वालिटी क्राइटेरिया लगाना पड़ता है रीडिंग का नंबर, उसने आज के टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग में काम करेगी 10,000 में बड़ा है ना, इवन नहीं हो तो 10,000 में रीडिंग नहीं कर सकते ना। तो वहां पर हम उसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए एक एक्स्ट्रा फनल लगा देते हैं जिसको क्वालिटी क्राइटेरिया का नाम देते हैं कि जो पेपर ए स्टार या एबीएस 1 में छपे हम उसको लेंगे। द मोमेंट आप ये क्राइटेरिया फिट करते हो तो जो वेब ऑफ साइंस उस पर्पस से इंडेक्स चैनल है वही है, ये बाहर आएगा। So these are state for management people and Scopus law वाले भी लगा सकते हैं क्योंकि Scopus की कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव है other than management। फिर ये अलग अलग डायग्राम्स में डिफरेंट पेपर्स लेके आपको बड़े क्रिएटिव डायग्राम्स मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ये बैकबोन है आरएम का। ये डायग्राम एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर दिस डायग्राम। ये डायग्राम इस तरीके से एग्जॉस्टिव आपका आरएम बताता है कि कितने पेपर लेके चले, कौन से कीवर्ड से कैसे आए। अगर मैंने कहा स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस तो जनरल होते हैं वो दोनों के अंदर इंडेक्स होते हैं, तो वो डुप्लीकेट एंट्री में निकल जाएगा आपका और उसके बाद आप इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। ये मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लगाया स्कोपस डेटाबेस का और इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। आप 3 चीजों पे कर सकते हैं। जैसे मैम ने बोला कि पीजी के ऊपर रिसर्च करना है मुझे फॉर एग्जाम्पल पीजी, तो आपने बहुत सारे पेपर निकाले जिसका सैंपल आपको लगे कि अंडर ग्रेड का लिया वो आपके आउट ऑफ स्कोप रिपोर्ट में आ रहा है। तो आप हर लेवल पे बता रहे हो कि हर लेवल पे मेरा पेपर बाहर कैसे जा रहा है। इनिशियली सारे नहीं निकलते हैं, आपको एक्सटेंड का स्क्रीनिंग करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, फास्ट रीड देना पड़ता है, कुछ वहां फिल्टर होता है, थोड़ी थोड़ी पेपर भी पढ़ने पड़ते हैं। इट्स नॉट दैट एक्सपेक्ट रीड किया और आप अपने वर्ड लिखते हो, नहीं होता। ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया किसी पेपर से लिया है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखो कंप्लीट साइटेशन, इनकम्प्लीट साइटेशन तो रिवर्स ही होता है। अब आप कुछ पॉइंट उसमें इंक्लूजन में डाल दीजिए तो टॉपिक से एक्सक्लूजन में डाल दीजिए। अलग अलग पेपर में आपको अलग अलग मिल जाएगा। कुछ ने क्या किया, अलग अलग रिसोर्सेज लिए, सबकी कुछ कुछ की स्ट्रिंग्स होती है वो एक रिसोर्स से नहीं चलती, एस्ट्रिक है उस फोकस पे चलता है, वेबसाइट पे नहीं चलता है। तो अगर आपने अलग अलग डेवलप किए हैं तो आप वो भी ले लीजिए। कुछ नहीं है, these are just ways to convince the editors and the reviewers that we have done a serious job। आप ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं थ्रू योर रिपोर्टिंग। जैसे हम क्वेश्चन में करते हैं ना, हमने यहाँ लिया, इतना डेटा लिया, इतने टाइम के बीच में लिया, इतने लोगों से पूछा, ये आइटम ड्रॉप किया। अब बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उस तरीके से उसकी पूरी की पूरी नैरेटिव्स तैयार करते हैं कि जैसे कोई आंखें बंद करे उसको समझ आए कि आपने क्या किया। सिमिलर तरीके से ये सारे पिक्चर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन टेल द एडिटर एंड द रिव्यूअर कि आपने सीरियस जॉब के ये ऐसे खूब तक काम नहीं। इस तरीके से बनाया हुआ अलग अलग कुछ कुछ
पेपर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक क्राइटेरिया होते हैं, सर्वे था कि नहीं था, एक्सपेरिमेंट था कि नहीं था, हर चीज को नंबर दिए हुए हैं, कितनी इंफॉर्मेशन मेथोडोलॉजी में दी हुई है, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, सब ऊपर। और मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला करती हूँ, सिंपल सा करो कि जो ए स्टार में है उसको लिया बाकी बेटा, क्योंकि वो एक बेसिक पॉलिटिक क्राइटेरिया बहुत सिंपल वन है कि एबीएस मार्क्स का लेवल है और वो वेल एक्सेप्टेड ही है, ऐसे नहीं बोल रही है, दैट इज वेल एक्सेप्टेड। तो आप वो भी कर सकते हैं, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड काम करने का मन है तो चाहे वो भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंशियल FT50 जर्नल्स, A स्टार A एंड B रैंक एज पर ABDT और ADS का 4 स्टार 3 and 2 हमने कैप का दिया। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना क्वालिटी को स्क्वीज करना है, कितना उसको लूज करना है, डिपेंडिंग ऑन कितने पेपर रह रहे हैं। ऐसा ना कि पेपर 15 ही रह गए, पर ऐसा नहीं हो कि पेपर 2000 रह गए। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्वालिटी क्राइटेरिया इज वन थिंग, दिस इज द प्ले, राइट। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे किचन है, मैं अलग अलग लोग हैं, इन्होंने अलग अलग क्वालिटी की दी है कि ये भी एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। 5 पैरामीटर पे दो, सब नंबर दो, फिर देखो हर स्टडी ने कितना स्कोर किया है, एक स्कोर मिनिमम निकालो, जो स्टडीज के कम मिनिमम स्कोर ले उसको बाहर कर दी। तो दीज ऑल आर गिवन साइंटिफिक वे, ऑब्जेक्टिव वे कि हम बस ये बता दें why one study qualified for the results and why one not qualified। ये भी लिया हुआ है लोगों ने अलग क्राइटेरिया। एक ये लिया हुआ है कि रिसर्च डिजाइन में आप अलग देखे, डेटा एनालिसिस में अलग देखे, कंटेक्स्ट में अलग देखे। ये इंटर कॉर्डर क्या होता है आजकल, ये चीज भी चल रही है। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि 3 लोग हैं, हम रिसर्चर की टीम है, एक पेपर आया जो बड़ा क्लियर समझ नहीं आ रहा वेदर वी शुड इंक्लूड इट और नॉट, ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सर कह रहे हैं कि करना चाहिए, मैं कह रही हूँ नहीं करना चाहिए। तो अगर हम दोनों के बीच में ओपिनियन मिसमैच है तो थर्ड को फिर दो, फिर वो क्या कहते हैं। या कितने पेपर ऐसे अगर मोर देन 2 है कि 3 लोग थे तो कितनों ने एग्री किया कि ये पेपर होना चाहिए। अगेन ये वो सिर्फ सब्जेक्टिविटी को रिमूव करने के तरीके दिखाए हैं कि ऐसा नहीं कि हमने अपनी मन मर्जी से पेपर ले लिए, हमने एक कंसल्टेंसी से पेपर लिए एंड बायसनेस इज अवे फ्रॉम दैट। जैसे हम कॉमन मेथड बायस क्वांटिटेटिव में समझाते हैं, यहाँ पर हम बायसेस को इस तरीके से समझाते हैं। डेटा एक्सट्रैक्शन क्या है? डेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब है अब आपके 50 पेपर फाइनल हो गए, अब उसके डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक्सेल शीट डेवलप करनी है, उसको बोलते हैं डेटा एक्सट्रैक्शन शीट। ना डेटा एक्सट्रैक्शन शीट के कॉलम्स क्या होंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच होंगे। अगर आपने कहा एडीओ फ्रेमवर्क बनाना है, एंटीसेडेंट डिसीजन आउटकम, तो आप एंटीसेडेंट निकालेंगे उस फिनोमेना के, सेटिस्फेक्शन अगर डिसीजन है तो सेटिस्फेक्शन डिसीजन था, रीपरचेज बिहेवियर आया तो वो आपके आउटकम है। तो ऐसे आप हर पेपर में जाकर एंटीसेडेंट डिसीजन और आउटकम निकालोगे। अगर आप पीसीसीएम फ्रेमवर्क ले रहे हो तो हर पेपर में जाकर कॉलम बनाओगे स्टोरी का, उसमें कौन सी स्टोरी थी, कौन से कंटेक्स्ट में यूज हुआ, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या मेथोडोलॉजी थी, आप वो कॉलम बनाओगे। तो बट एवर यू डिसाइड, कई बार हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पेपर में से डेटा निकालते हैं, कभी कभी हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके पेपर पढ़ के फिर देखना पड़ता है कि प्रोजेक्ट से क्या बनाया या फ्रेमवर्क क्या है। नॉट एवरी टाइम यू आर अवेलेबल विद द इंफॉर्मेशन की पेपर के अंदर क्या है, वो तो पेपर पढ़ने के बाद पता चलेगा ना किस तरह का बनता है। तो जहां से आपको लगता है कि कुछ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन निकल सकता है, वी डू दैट। उसके बाद आर्ग्यू में प्ले में रोल हियर, जैसे इन्होंने कहा स्टडी की पॉपुलेशन क्या थी, स्टडी की लोकेशन क्या थी, स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे डेटा एक्सट्रैक्शन की कॉलम्स में आता है। जैसे हम हर पीएचडी वाले बच्चे ने किया होगा कभी कभी डेटा एक्सट्रैक्शन हम तब करते हैं, लिटरेचर रिव्यू शीट बनाते हैं, बस इसी का दूसरा नाम है डेटा एक्सट्रैक्शन। उसके बाद रिजल्ट एंड फाइंडिंग, दो तरह के रिजल्ट, जैसे हमारे क्वांटिटेटिव में एक सैंपल कैरेक्टरिस्टिक का कॉलम होता है और एक वेरिएबल्स का होता है। सिमिलरली यहाँ पर स्टडीज हमारा सैंपल है, तो एक उनका कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि कितने यूनिट्स होती, कौन से कंट्री में होती, कितनी साइटेशन थी, ऐसे करके देखिए कौन से जर्नल में पब्लिश हुई, कौन से कीवर्ड ज्यादा थे, ये तो उसका डिस्क्रिप्टिव हो गया। नो साइंटिफिक क्या हुआ कि जब हम उनके क्लस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से आपस में जुड़े हैं, क्या थीम्स इनमें जुड़े हैं, कैसे डेवलप हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, वो उसके सेकेंड पार्ट में ये सारा बता दे सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है उसमें इस तरीके से रिजल्ट दिया है, कंट्रीज के बारे में डिस्कस थे। और फ्यूजन रिसर्च एजेंडा विच शुड बी एटलीस्ट
15 to 20% ओके होते थे। अगर 6,000 वर्ड का पेपर डेवलप कर रहे हैं, 1 से 1,500 रुपए इस सेक्शन वर्ड सेक्शन को जाने चाहिए। क्योंकि मेन पर्पस मेन फाइंडिंग है, हम डिस्कशन सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्वांटिटेटिव रिजल्ट डिस्कशन इन सिमिलर वे फ्यूचर रिसर्च इज इन राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। इसके साथ थोड़ा सा लिमिटेशन जरूर बताएंगे कि हमने तक फोकस लिया, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज लिया, करेक्ट एंड विल बी रीडिंग। मैम फॉर्मली मैं आपको थैंक करती हूँ। आइए मुझे फोटो तक तो चलेगा नहीं। हाँ कर दिए ना और हाँ। I'm running short of words to express my humble thanks to Dr. Pooja Goyal, Associate Professor at Department of Commerce, Institute of Economics, University of Delhi. Ma'am, we thank you for enriching our knowledge on the fundamentals on which the structure of research is built and also stimulating our urge to gain further knowledge in the area of research in the upcoming session. That's all for today. Thank you for August gathering and sir एक ठीक है Praveen sir, I request the person who has joined us online for a break. Please switch on your cameras. All right. So have a great day. Keep learning. Thank you so much.